Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is user interface design. Before starting today's topic, we recap the last lecture. In last lecture, we discussed basic design concepts. We started with the term design, and we discussed the two important considerations. That design process is towards fulfillment of the specific or predefined objectives with predefined constraints. Whenever you design for the product, definitely there are some limitations or constraints that you have to be considered. And then we discussed that the goal of design is the quality product. Ultimate objective of the design is to have a good quality product. If we do not focus on the design process, then we will lack the quality. If there is some change, then system become or the product become unstable because we don't have the thorough design process. So that's why it is quite important to properly design the product. And then we discussed this process in the context of software engineering, and after requirements engineering phase and in the modeling activities, design is the last modeling activity, and after that then we have construction code activity, or we may say the software development activity. So whatever we design, that is the base for software development code, and then it is also the input for software testing. And then we discussed that the process of design is always based on some quality guidelines. As I earlier said, that the process of design is quite necessary towards a quality product. So if we have some guidelines that we consider during the design process, then the ultimate product, the end product, will be the good one. So there are different quality models that guide us during the design process, and we discuss some quality attributes like reliability, like performance, and during the design process we have to consider these quality attributes. And different attributes not necessarily have the same weightage. Depending on the nature of the project and domain, we may have different weightage for different quality attributes or factors. Then we discussed evolution of software design process, and we said that this process is under the continuous improvement for last 5 or 6 decades. In the beginning of software design era, we have procedural approach, and we try to divide software or the product into multiple modules, and that modules are basically the procedures, and we have procedural paradigms or procedural or structural languages that support us in such paradigm. And then we move towards object-oriented paradigm. Object-oriented programming languages were developed, and in that paradigm we have to have the analogy of the real objects. And when we design based on the object-oriented paradigm, so we try to classify and we have to define different objects within that specific context. And then we move towards aspect-oriented paradigm, and we discussed what are the aspects, what are the cross-cutting concerns, and there are different aspect-oriented languages that support the aspect-oriented paradigm. Nowadays we are moving towards test-driven or the model-driven approaches, and then we discussed the primary design concepts like abstraction, and we said that design process provides us the abstraction, and abstraction means that we start with the higher level of abstraction with the
broad view of the system, and then we further divide it into sub-components or modules, and as we move towards the lower level of abstraction, we get refinement and details of that system or the product. Similarly, we discussed about the architecture. Architecture is the structure of the software or system, and we divide into different components, and those components how they interact with each other and the external environment. And then we had the topic called design patterns, and pattern is like valid or the already tested solution for some specific problem in the specific context. So we have different design patterns that we may use in different scenarios, in different contexts. And we discussed about information hiding, that whatever module we define, so every module should contain the relevant information, and they should not provide access to unnecessary modules. And if we reduce this unnecessary access for other modules, it helps us to have better software, better systems, because then we have less chance of errors, and if some error occurs within that module, so it actually avoids the propagation of that error in other modules. And we also discussed about the separation of concerns, and then we discussed about the refactoring. And refactoring was the gradual refinement of the modules. And in the start, we discussed that design is the iterative process. So when we have multiple iterations, so with every iteration we move towards the refinement. Maybe at the first iteration, some module is supposed to have 2 or 3 functionalities, but then in the next iteration we again review that module, and we see that there is only one basic functionality relevant to that specific module. So we have to remove that unnecessary functionality, and the other unnecessary algorithms are the data variables. And similarly, we discuss the design classes when we say about object-oriented paradigm. So there is the concept of classes. So we discussed that we should have the well-defined classes, and in that scenario we should have high cohesion and the low coupling. These are the 2 important attributes of the well-defined classes. So high cohesion means that the module or the class has information hiding properly, no unnecessary access to that specific module or the class. And low coupling means that interfacing with the other classes is minimized. So we avoid interaction between different classes unless it is quite necessary. So these were the basic design concepts that we discussed in the previous lecture. Today we will discuss some basic user interface design concepts. We start with the importance of user interface design, और हम देखते हैं कि हमारे पास nowadays lot of product around us in different domains. Like for the fun we play games with different devices. ये आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, या आपका मोबाइल भी हो सकता है. Similarly we have social networking sites, और उसके ऊपर डिफरेंट देखिए मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं. इसी तरह से बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, मिलियन ऑफ यूज़र्स आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑन द बैंकिंग साइट्स. इसी तरह से और जो है साइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप परचेज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट आइटम्स. और इसी तरह से आप अगर हॉस्पिटल्स के अंदर देखें तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि डॉक्टर्स और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यूज़ कर रहे हैं. तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब के अंदर यूज़र इन्वॉल्वमेंट है. यूज़र हैज़ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम विद डिफरेंट एप्लीकेशंस, चाहे वो CD प्लेयर हो और वो चाहे वेपन कंट्रोल सिस्टम हो.
almost every application has user interface. तो इसलिए यूज़र इंटरफेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और अक्सर आप टर्म एक हम लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा उसको डिस्कस किया था यूजिबिलिटी को. तो कोई भी प्रोडक्ट जो कि यूज़र्स के अट्रैक्शन को अपनी तरफ ले सके और एफिशिएंट मैनर में जो है वो जो भी प्री डिफाइंड टास्क हैं वो परफॉर्म कर सके, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली जो है प्रेफर की जाएगी. तो कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इट मस्ट कंटेन गुड यूजिबिलिटी और इट मस्ट सर्व यूज़र वेरी वेल. तो अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली जो है हेल्प आउट करते हैं यूज़र को एफिशिएंटली काम करने में. वट एवर इज़ द टास्क यूज़र परफॉर्म इट लाइक विथ नो और वेरी लेस और लिटिल एफर्ट. तो अगर यूजिबिलिटी पुअर है तो फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी एंड यूज़र विल गिव अप. और डेफिनेटली ये आपको अल्टीमेटली किस तरफ लेके जाएगा, आपके बैंकक्रप्ट होने की तरफ लेके जाएगा, जो अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट होगा. तो हमें यूजिबिलिटी जो है उसके ऊपर फोकस करना होता है जब हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते हैं. और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है या जो यूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है दैट वाज नॉट डोमिनेंट फॉर द फर्स्ट 3 डिकेड्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. हमारा जो फोकस था दैट वाज मोर टूवर्ड्स द सिस्टम सेंट्रिक थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम फंक्शनैलिटी. लेकिन आज अब जो है वी हैव टू हैव द यूज़र सेंट्रिक अप्रोच. हमें यूज़र को फोकस करना होगा कि यूज़र किस तरह से आपके सिस्टम के साथ, आपके एप्लीकेशन के साथ, प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है. और अगर वो इंटरेक्शन जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट को कोई नहीं यूज़ करेगा. और फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात बड़ी अच्छे तरीके से कन्वे की गई है, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट कन्फर्म्स टू पीपल रादर देन पीपल आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म टू टेक्नोलॉजी. तो ये जो पॉइंट है ये इस चीज़ को समराइज करता है. पहले हम टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहे थे और टेक्नोलॉजी जो है वी वर लुकिंग टूवर्ड्स पीपल टू सिंक विद द टेक्नोलॉजी. अब हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को जो है वो पीपल्स को सर्व करना चाहिए. तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज सिनेरियोज. जब हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 3 बेसिक उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. अच्छा, अगर हम कहें कि उसका इंटरफेस है या अच्छी इंटरेक्शन वो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट. द फर्स्ट वन इज़ यूजफुल. व्हाट डज इट मीन कि वो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है दैट मस्ट बी देयर. कि जो बेसिक जिस फंक्शन परफॉर्म करना है उसने जिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनाई गई है प्रोडक्ट, वो उसको फुलफिल करना चाहिए. लाइक इफ़ देयर इज़ म्यूज़िक प्लेयर, तो म्यूज़िक प्लेयर की फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शनैलिटी है दैट इज़ टू प्ले द म्यूज़िक. और अगर वो म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा तो फिर चाहे वो जितने भी अच्छी हो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड एप्लीकेशन है, कोई टेक्स्ट एडिटर है, तो उसका पहला बेसिक जो पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़, वो है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको फॉर्मेट कर सकें, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें. तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी जो है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए. तो इट मीन्स कि जब बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है देन वी से द प्रोडक्ट इज़ यूजफुल. सेकेंड फीचर इज़ our second characteristic is usable. And what does it mean? That people can use or the user can use it easily and in a natural way. तो ये यूजेबल प्रोडक्ट होगी और जिसके अंदर एरर का चांस जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज्ड हो. एरर प्रोन नहीं होनी चाहिए. आपका यूज़र जो है उसको फ्रीली यूज़ करे और बगैर जो है वो कम एफर्ट के साथ जो है उसको यूज़ कर सके. Then we may say that product is usable. And third characteristic is used. When we have both characteristics in the product, the useful and usable, and then in fact people will use it.
तो देन वी से दैट प्रोडक्ट इज यूज्ड। और ये जो है यूज्ड में ये भी आता है कि अगेन कि वो बेसिक फंक्शनैलिटी और इजी टू यूज़, और फिर उसके साथ साथ जब यूज़र उसको यूज़ करे तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले विद यूजिंग दैट प्रोडक्ट, और वो उसको इंगेजिंग हो और समहाउ उसके लिए फन हो, रादर देन कि उसके लिए वो कम्परसम हो और उसको वो बर्डन फील करे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजफुल, यूजेबल एंड यूज्ड, जो कि किसी भी अच्छी प्रोडक्ट के अंदर या सॉफ्टवेयर या सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। नाउ वी डिस्कस 3 golden rules for user interface design. These golden rules were proposed by Mendel in 1997. And the first one is place the user in control. आपका जो यूजर है उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। He must feel that he is actually the controller of the system. ऐसा ना हो कि सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है, और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड। जो यूज़र की मेमोरी है उसकी अपनी जो है वो कंस्ट्रेंट्स हैं। यूज़र की मेमोरी को भी एटलीस्ट 2 ब्रॉड कैटेगरीज में जो है वो कंसिडर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ये 2 डिफरेंट, इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी भी सिस्टम के साथ और कोई भी काम जो है वो कर रहा होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो कैपेबिलिटी है चीज़ों को स्टोर करने की और चीज़ों को रिटेन करने की, वो भी कम है, शॉर्ट है। तो इसीलिए जब हम प्रोडक्ट कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो वी हैव टू हैव दिस कंसिडरेशन कि इसको हमने देखना होता है कि कहीं एक्स्ट्रा मेमोरी लोड तो नहीं है यूज़र के ऊपर। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। थर्ड जो रूल है दैट इज़ मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी यूज़र कंफ्यूज होते रहेंगे। तो हम इन तीनों रूल्स को जो है अब फर्दर एलैबोरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर फर्दर डिस्कशन है। ओके, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल। और इसके अंदर जो पहली बात जो जिसका ध्यान रखने वाला है दैट इज डिफाइन इंटरेक्शन मोड्स इन अ वे दैट डज नॉट फोर्स अ यूजर इनटू अननेसेसरी और अनडिजायर्ड एक्शंस। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी यूजर इंटरेक्ट करता है विद द सिस्टम तो उसको जो है बहुत कम एफर्ट के साथ जो भी डिजायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म करना चाहिए, रादर देन कि उसको अननेसेसरी या अनडिजायर्ड जो है एफर्ट करनी पड़े। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट वन है द इंटरफेस मोड इज द करंट स्टेट ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस मोड से मुराद ये है कि जब आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर ये ऑप्शन होना चाहिए, ये उसके अंदर फीचर होना चाहिए कि जो भी करंट सिस्टम की स्टेट है वो यूज़र को पता होनी चाहिए। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है और उसके अंदर आपने अब प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया है, तो अब आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो एक्टिव है और आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो मेन जो आपकी विंडो है वो इनएक्टिव हो गई है। तो ये बड़ा क्लियर कट जो है इसको यूज़र को मैसेज आना चाहिए कि इस वक्त जो सिस्टम है या जो एप्लीकेशन है वो किस मोड में है, उसका स्टेटस क्या है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपने स्पेल चेक का जो है वो ऑप्शन अभी उसको एक्टिवेट किया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो स्पेल चेक का ऑप्शन है वो एक्टिव है और आप दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट या मेन विंडो है वो इनएक्टिव हो गई है। तो यूज़र जो है उसको ये कंट्रोल भी होना चाहिए कि वो जब भी चाहे उस स्टेटस से, उस मोड से जो है अपने आप को स्विच कर सके या एग्जिट कर सके। तो वो जो एफर्ट है दैट मस्ट बी मिनिमाइज्ड, और जब तक वो मिनिमाइज नहीं होगी तो यूज़र को जो है अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा विद दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो हमें
इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। सेकंड वन इज़ प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन। व्हाट डज इट मीन कि यूज़र जो है उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, यूज़र की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हाँ, हर एक की डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, और फिर अगेन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, एज, उनकी अपने सिस्टम को यूज़ करने की भी प्रेफरेंसेस होती हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या पॉसिबल या जेनेरिक टाइप्स हैं यूज़र्स की, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि वो जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस को अकोमोडेट करना चाहिए। लाइक कुछ यूज़र्स जो हैं जो कीबोर्ड को यूज़ करना प्रेफर करेंगे, जबकि कुछ और यूज़र्स जो है दे क्वाइट पॉसिबल दे हैव सम फियर ऑफ यूजिंग कीबोर्ड्स, और वो ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील करें विद माउस। तो माउस जो है और कीबोर्ड जो है ये डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं यूज़र्स की फॉर इनपुट। तो इस तरह की चीज़ों को आपने देखना होता है। सिमिलरली एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देखना होता है कि हर एक्शन जो है दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड विद द एवरी इंटरेक्शन मैकेनिज्म। जैसे अगर आपने माउस के साथ ड्रा करना है, एक पेंट का टूल आपने ओपन किया है, उसके अंदर आप माउस के साथ जो है कुछ ड्रा करना चाह रहे हैं, इट इज़ क्वाइट ईजी टू ड्रा विद द माउस पॉइंटर। लेकिन अगर यही काम आप कीबोर्ड के साथ करने लग जाएंगे तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल हो। तो इन चीज़ों को हमने कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको कंसीडर करना चाहिए दैट इज़ अलाउ यूज़र इंटरेक्शन टू बी इंटरप्टेबल एंड अनडूएबल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स अनइंटेंशनली यूज़र जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, मैं नहीं चाह रहा लेकिन मैंने ऐसे ही माउस क्लिक कर दिया, तो ये एक अनडिज़ायरेबल एक्शन है, और इसके अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेट्स से कि मेरी जो माउस क्लिक है उसकी वजह से कोई अगेन के पेंट का प्रिंटर जो है, प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया, तो लेकिन मैं ये नहीं करना चाह रहा था, मैं आई डोंट वांट टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट। तो अब इसको क्या कैसे करेंगे कि आप उसको कैंसिल कर सकें। अनडूएबल जो है वो आपका इंटरफेस होना चाहिए, आप जो है अनडू कर सकें, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सिंगल एक्शन हो, आपके पास सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हो सकता है। जैसे आप टाइपिंग करते चले जा रहे हैं और डिफरेंट टाइप की जो है ना आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कभी आपने किसी को बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और इस तरह से सो ऑन, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर अब वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, और सीक्वेंस ऑफ एक्शन के अंदर भी जो है आपने जो काम किया है उसको लूज किए बगैर जो है वो आप चीज़ों को जो है इंटरप्ट कर सकें। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसको जब आप इस तरह से कैंसिल करते हैं या अनडू करना चाहते हैं, तो वर्किंग जो आपने जो पहले से जो कुछ किया हुआ है दैट कैन नॉट बी सेव्ड मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर ये जो चीज़ है वो डिज़ायरेबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह से जो एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है दैट इज़ स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन एज स्किल लेवल्स एडवांस एंड अलाउ द इंटरेक्शन टू बी कस्टमाइज्ड। और ये भी देखें क्वाइट नेचुरल है, आप पहली दफ़ा किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आप उसमें छोटी छोटी डिटेल्स के जो है साथ काम करना पसंद करेंगे, लेकिन एज यू बिकम एक्सपीरियंस्ड विद दैट एप्लीकेशन तो अब आप जो है वो उसको आपके लिए वो बोरिंग होगा, टीडियस होगा कि आप हर एक छोटे स्टेप को परफॉर्म करें, तो आपको कोई शॉर्टकट्स चाहिए होंगे। और जब आप शॉर्टकट्स के थ्रू जो है काम करना चाह रहे हैं तो आपका सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब वे टू शॉर्टन योर एक्शन या योर वर्क। तो अब इसकी सपोर्ट होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। और इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, अगर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस को देखें जैसे ऑफिस के अंदर ही, तो आप मैक्रोज डिफाइन कर सकते हैं। तो वो मैक्रो क्या करते हैं, आपके कोई जो रिपीटेबल एक्शंस हैं, रिपीटेबल जो टास्क हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसी तरह से शॉर्टकट कीज़ होती हैं, शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी एफर्ट को जो है वो कम कर सकते हैं। Another important consideration is we have to hide technical internals from the casual user। जो नॉर्मल यूज़र है आपका, उसको टेक्निकल डिटेल के अंदर इंटरेस्ट नहीं है,
ठीक है। तो आपको आपकी एप्लीकेशन या आपका जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम है उसको टेक्निकल डिटेल्स को हाइड करना चाहिए, और यूज़र जो है उसको आप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसको इस तरह से समझें मिसाल के साथ, इस एग्जांपल के साथ, कि आपकी एप्लीकेशन अगर आपको ये फोर्स करती है कि आप उसके थ्रू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई कमांड्स जो हैं उनको भी आप एग्जीक्यूट करें, तो ये कोई अच्छी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो आपकी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी या जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन हाइड होनी चाहिए। यूज़र को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही है। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर कंसिडरेशन है, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो ये है कि हम रियल लाइफ के अंदर भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों के साथ डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करते हैं, और जिस तरह से हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं उसी तरह से हम वर्चुअल वर्ल्ड में भी, एप्लीकेशंस के अंदर भी, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, वी नीड दैट काइंड ऑफ नेचुरल मैनिपुलेशन। और इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो ड्रैग करें और उसको जो है रीसाइज कर लें, तो ये बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, तो उसी तरह से आप क्या करते हैं, जो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको भी कर लें। तो ये एक अच्छी मैनिपुलेशन है, एक अच्छा इंटरफेस है जो कि यूज़र को उसी तरह की डायरेक्ट मैनिपुलेशन देता है जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में होती है। अब हम नेक्स्ट जो है जो हमारा डिज़ाइन रूल था, जिसको हमने गोल्डन रूल्स का, बहुत सारे डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं और उनमें से ये एक है जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने 3 गोल्डन रूल्स का है। अब सेकंड गोल्डन रूल इज रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड। अब इसके अंदर क्या कुछ कंसिडरेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज रिड्यूस डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमें जो है उसको कंसीडर करना चाहिए व्हेन वी आर डिजाइनिंग एनी एप्लीकेशन। तो जो टास्क हैं, जो डिफरेंट टास्क यूजर ने परफॉर्म करने हैं, दैट मस्ट बी सिंपल, और जितने वो कम्प्लेक्स होते जाएंगे डेफिनेटली उतने ही यूजर मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ता चला जाएगा। तो हमें इसको जो है वो अवॉइड करना होता है कि वी ट्राई टू हैव सिंपलर टास्क, ठीक है। और फिर अगेन इसके अंदर एक और चीज़ जो है, हमें सिस्टम को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो यूज़र से डिमांड नहीं करे सिस्टम कि वो जो प्रीवियस उसके एक्शंस हैं और जो प्रीवियस इनपुट्स हैं उसको जो है वो मेमोराइज करें। अगर सिस्टम जो है ये उसको खुद से चीज़ें मैनेज करनी चाहिए और यूज़र को कम से कम जो है मेमोरी लोड उसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप यूज़र के ऊपर मेमोरी लोड ज़्यादा डालेंगे तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होगा और ज़्यादा जो है एरर्स जो है वो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव टू एस्टैब्लिश मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट्स फॉर आवर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी यूज़र के लिए, उसके जो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। और फिर जब आप इस तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रहे हैं तो आपको एक एवरेज यूज़र को जो है उसको कंसीडर करना होगा। एवरेज यूज़र को कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली आप एक मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे जो कि ना तो बहुत मुश्किल होंगे और ना ही जो है वो बहुत सिंपलर से होंगे। तो इसको कंसीडर करना चाहिए। और फिर अगेन ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि जिसके अंदर अगर यूज़र प्रेफरेंसेस चेंज हुई है तो उसको रीसेट भी किया जा सके। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी एप्लीकेशन में होगी, आपके सिस्टम में होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा। एक और जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो ये है कि यू हैव टू डिफाइन इंट्यूटिव शॉर्टकट्स। इंट्यूटिव शॉर्टकट्स मीन जो है कि जो फ़ौरन से जो है मीनिंग अपने कन्वे कर दें। जैसे अगर मैंने कॉपी करना है तो अगर इसके लिए कंट्रोल सी जो है वो कॉपी, सी स्टैंड्स फॉर कॉपी, तो कंट्रोल सी जो है वो एक मीनिंगफुल जो है शॉर्टकट है।
और इसी तरह से अगर मैंने प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी का जो कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल की प्लस पी की, तो पी इज फॉर प्रिंट, तो ये जो है इंट्यूटिव शॉर्टकट है। लेकिन अगर कोई और इस तरह से कोई हटके होगा जिसके मीनिंग फौरन से कन्वे नहीं होंगे तो वो यूज़र को याद रखना मुश्किल होगा। और हम ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यूज़र को कम से कम मेमोरी लोड जो है वो उसको होना चाहिए उसका। तो इसी तरह से एक और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो विजुअल लेआउट है एप्लीकेशन का, जो भी आपकी स्क्रीन का डिस्प्ले है, ग्राफिकल इंटरफेस है, वो रियल वर्ल्ड मेटाफोर के साथ जो है उसको सिंक होना चाहिए, उसके साथ उसके सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए या उससे मिलता जुलता होना चाहिए। द टर्म मेटाफोर इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। मेटाफोर क्या होता है कि जो रियल लाइफ की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बच्चों की एप्लीकेशन है, बच्चों के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जैसे बच्चे बुक से पढ़ते हैं, बुक से लर्न करते हैं, तो आपका जो इंटरफेस है उसकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो बुक के फॉर्मेट में होनी चाहिए और बुक की तरह बच्चे को लगनी चाहिए, तो वो बच्चा ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। इसी तरह से और भी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो उसके रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, वी हैव टू ट्राई टू हैव द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे एक और एग्जांपल देखें स्लाइड के ऊपर कि प्रिंटर का आइकन जो है वो प्रिंटर ही के साइन को डिस्प्ले कर रहा है, तो उसको जैसे ही आप देखते हैं आप फौरन अंडरस्टैंड करते हैं कि ओके इट इज़ फॉर प्रिंटिंग। Another important consideration is we have to display or disclose information in a progressive fashion। जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो आपका जो इंटरफेस है उसके अंदर एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि प्रिंटर की ऑप्शन है, व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रिंटर बटन तो बेसिक फंक्शनैलिटी जो है उसको डिस्प्ले होना चाहिए। इफ़ समवन इज इंटरेस्टेड इन मोर डिटेल्स तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको फर्दर जो है वो डायलॉग बॉक्स दिखाते हैं, फर्दर उसको विंडोज ओपन करके देते हैं जिसके अंदर वो प्रिंटर की सेटिंग या जो प्रिंटर की सेटिंग या डॉक्यूमेंट के हवाले से उसने किस तरह के प्रिंट्स लेने हैं वो सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ प्रोग्रेसिव वे। थर्ड गोल्डन रूल वाज मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जो important point है that is allow the user to put the current task into a meaningful context। what does it mean कि आप जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसकी मल्टीपल जो है वो स्क्रीन्स होंगी, मल्टीपल उसकी विंडोज़ होंगी जो कि डिस्प्ले होंगी, तो आपको उसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने जो करंट उस वक्त जो टास्क है जो परफॉर्म किया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी स्क्रीन होनी चाहिए और उसका स्टेटस डिस्प्ले होना चाहिए। और जो एक टास्क परफॉर्म करते हैं जिस तरह से और डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर भी वो टास्क वैसे ही परफॉर्म होना चाहिए। इसी तरह से इंडिकेटर्स हमें जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए। व्हाट डज इट मीन कि आपके जो डिफरेंट जो स्क्रीन्स हैं, अब जैसे आपकी एक स्क्रीन जो है उसके ऊपर आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो यूज़र से इनपुट लेने की जो स्क्रीन है और उसका जो लेआउट है, तो किसी और जो आपकी एप्लीकेशन की जो और डिफरेंट स्क्रीन जिसके ऊपर आप कोई और इनपुट लेना चाह रहे हैं तो वो भी सिमिलर होनी चाहिए, उसी तरह से होनी चाहिए। अगर आपका ओके बटन जो है वो बॉटम के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर है, तो बाकी स्क्रीन्स के ऊपर भी जहाँ जहाँ पे आपने ओके बटन को यूज़ करना है वो उसी जगह पे होना चाहिए। और फिर इसी तरह से यूज़र शुड नो द कॉन्टेक्स्ट, उसको पता होना चाहिए कि वो इस वक्त करंटली कहाँ पे है। उस जैसे अगर सपोज कि आपने एक एप्लीकेशन ऐसी डिज़ाइन की है जो भी यूज़र का टास्क है वो 3 स्टेप्स में परफॉर्म होना है, तो इफ़ यूज़र इज़ एट स्टेप 2 तो ये इंडिकेशन उसको मिलनी चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ पे है। और इसी तरह से अल्टरनेट्स उसको पता होने चाहिए। अल्टरनेट्स मीन कि अगर किसी एक स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर वो कुछ अपना माइंडसेट उसने चेंज कर लिया है, वो उसको कैंसिल करना चाह रहा है, कहीं उससे प्रीवियस स्टेप पे जंप करना चाह रहा है, तो ये अल्टरनेट्स उसके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसको फोर्सफुली जो है वो टास्क कंप्लीट करने तक के जो स्टेप्स हैं वो उस पर लेके जाए। एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो ये है कि जो भी एक
सूट ऑफ एप्लीकेशन है, एक फैमिली ऑफ एप्लीकेशन है, उसके अंदर इंटरफेस सब एप्लीकेशन का एक जैसा होना चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट जो है एप्लीकेशन सेट है या फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस है, अब उसके अंदर इंटरफेस एक तरह का होना चाहिए। जैसे क्रॉस का बटन जो है एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए वो हमेशा टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर है, तो बाकी सारी एप्लीकेशंस के अंदर भी वो वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और एप्लीकेशन के अंदर वो राइट साइड पे गिवन हो। या जैसे कॉपी करने का जो कंट्रोल सी जो एक शॉर्टकट है वो या उसका जो आइकन है वो एक एप्लीकेशन में जैसा है बाकी एप्लीकेशन में भी वैसे ही होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी और वो कंफ्यूजन हमें लेके जाएगी फ्रस्ट्रेशन की तरफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने बात की कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेट ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर एक ही तरह से जो है फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए इस बात को कि ये प्रैक्टिस फॉलो की जाए, लेकिन सम टाइम्स जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस के अंदर आप वो जो कन्वेंशंस हैं उससे हट के जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इंटरफेस को। लेकिन अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की हमने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन सारी एक तरह से बिहेव करती हैं, तो आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की एक प्रैक्टिसेस हैं, जो एक्शन जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, वही प्रैक्टिसेस जो है बाकी विंडो एप्लीकेशंस के ऊपर भी उसी तरह से होने चाहिए, क्योंकि वो यूज़र की एक हैबिट बन जाती है, हैबिट डेवलप हो जाती है और फिर वो उसी तरह से परफॉर्म करता है। तो अगर वो वैसा नहीं होगा तो फिर यूज़र को जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो हमें अगर इस चीज़ को जो है इससे हट के अगर हमने काम करना हो, वो जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, उससे हट के अगर हम कुछ इस तरह का टास्क सेट करते हैं, कोई इस तरह के ऑप्शन सेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास वेल जस्टिफाइड आर्गुमेंट्स होने चाहिए। विदाउट एनी वेल डिफाइंड आर्गुमेंट्स जो ये प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस एनालिसिस और डिज़ाइन की। जब हम यूज़र इंटरफेस एनालिसिस करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं तो ये भी एक आइटरेटिव प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, और इसको मेनली हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू डेवलप आवर डिज़ाइन फॉर डिफरेंट मॉडल्स। और वो डिफरेंट मॉडल्स क्या है, यूज़र मॉडल है जो कि यूज़र से मुतल्लिक है। वी हैव टू हैव यूज़र बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसको सारा देखना होगा, और उसकी जो बेसिक जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी उसका वो फीचर सेट है, उसको देखते हुए हमें उनको कैटेगराइज करना होगा, और फिर बाद में उसी तरह से हमें सिस्टम इंटरफेस डिज़ाइन करना होगा। जब डिज़ाइन मॉडल की बात करते हैं तो वही कि यूज़र की प्रेफरेंसेस को देखते हुए, यूज़र सेट्स को जो डिफरेंट जो टाइप या कैटेगरीज हैं यूज़र्स की, उनको देखते हुए उसी तरह से फिर हमें एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी होगी। डिज़ाइन मॉडल जो है वो सिस्टम की डेवलपमेंट, सिस्टम के डिज़ाइन के ऊपर फोकस करता है। थर्ड मॉडल इज़ यूजर्स मेंटल मॉडल, या उसको सिस्टम परसेप्शन कहते हैं। हर यूज़र के एक अपनी परसेप्शन होती है, वो सोचता है कि उसने सिस्टम के साथ कैसे जो है एक्शन परफॉर्म करने, या उसने अपना टास्क कैसे करना है किसी सिस्टम के साथ, तो उसको यूज़र मेंटल मॉडल कहते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, जब आप इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते हैं, तो डिफरेंट यूजर्स का जो है वो डिफरेंट मेंटल मॉडल हो सकता है, डिफरेंट परसेप्शंस हो सकती हैं। तो इसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, और इसको इस तरह से भी कंपेयर किया जा सकता है कि जो डिज़ाइन मॉडल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसकी परसेप्शन है, जबकि यूज़र मेंटल मॉडल क्या है, वो यूज़र की परसेप्शन है। और फिर फाइनली इम्प्लीमेंटेशन मॉडल होता है, और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप है। आप प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर उसको यूज़र के साथ बैठ के उसको वैल्यूएट करते हैं और रिफाइन करते हैं। और ये मॉडल जो है ज़रूरी नहीं है कि सारे आपस में सिंक हों या एक जैसे हों, ये इस वेरी कर सकते हैं। और फिर हमें जो है इन मॉडल्स की जो वेरिएशन है इसको सामने रखते हुए एक कंसिस्टेंट और एक
प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना होता है। इन सारे मॉडल्स को सामने रख के हमें एक कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन डेवलप करनी होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स की, या इसको यूजर प्रोफाइल्स भी कह सकते हैं। तो ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं दैट आर टू, द फर्स्ट वन इज नोविस यूजर एंड द अदर वन इज एक्सपर्ट यूजर। और एक्सपर्ट यूजर को इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि नॉलेजेबल, इंटरमिटेंट और नॉलेजेबल फ्रीक्वेंट। और अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। नोविस यूजर क्या होता है? हु इज न्यू यूजर, उसको पहले सिस्टम का आइडिया नहीं है और हम उसको कहते हैं कि नो सिंटैक्टिक नॉलेज ऑफ द सिस्टम। सिंटैक्टिक नॉलेज क्या है कि उस सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, जो एपरेंट उसकी इंटरेक्शन है, जो डिफरेंट उसके ऑप्शंस हैं उनको कैसे जो है यूज करना है, कैसे आपने टास्क जो डिजायर्ड है वो परफॉर्म करने हैं, उसका आइडिया जो है नोविस यूजर को नहीं होता। और इसी तरह से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टम के हवाले से कि क्या इनपुट्स हो सकती हैं, क्या आउटपुट हो सकती है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिस्टम के साथ एसोसिएटेड, इनकी भी उसको लिटिल अंडरस्टैंडिंग होती है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। और इसको सिमेंटिक नॉलेज भी कहते हैं। तो नोविस यूजर जो है उसके लिए जब आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो वो जो इंटरफेस बनेगा वो ज़्यादा डिटेल्ड इंटरफेस होगा, वहाँ पे उसको ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी, उसको स्टेप वाइज जो है गाइडेंस चाहिए होगी। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक्सपर्ट यूज़र है उसको डिफरेंट तरह का इंटरफेस चाहिए होगा, क्योंकि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के हवाले से, डोमेन के हवाले से ज़्यादा अच्छी होगी। अब उसके अंदर नॉलेजेबल इंटरमीडिएट जो है उसको नॉलेज तो है, उसको रीजनेबल जो है सिमेंटिक नॉलेज है, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंट यूजर नहीं है, वो ऑन एंड ऑफ जो है उस सिस्टम को यूज करता है। और इसीलिए जब वो इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं करता तो उसको जो सिस्टम से रिलेटेड जो आपके अंडरस्टैंडिंग है और एक्शंस कैसे परफॉर्म होने हैं, तो वो जो सिंटैक्टिक नॉलेज है उसके लिए रिकॉल जो है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, या हम उसको कहते हैं कि रिलेटिवली लो होगा। और इसके मुकाबले में जो नॉलेजेबल फ्रीक्वेंट यूजर होता है वो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसको सिंटैक्टिक और सिमेंटिक नॉलेज जो है वो सिस्टम का वो ज्यादा अच्छा होता है। और उसके लिए समटाइम्स हम टर्म यूज करते हैं पावर यूजर, और पावर यूजर सिंड्रोम भी कहते हैं एक टर्म, दैट इज के आप उसको हमेशा शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, वो ही या शी नीड्स शॉर्टकट वेज टू परफॉर्म द टास्क। अब हम बात करते हैं यूजर मेंटल मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की। यूजर मेंटल मॉडल जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये यूजर क्या जो मेंटल इमेज है अबाउट द सिस्टम, हाउ ही और शी विल बी इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, ये उसकी डिटेल है। और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इंटरेक्शन जिसकी होनी है, जिसने सिस्टम को यूज़ करना है, वो वही यूज़र ही है। सिस्टम डेवलपर अगर अपने आप को अज्यूम करे यूज़र के तौर पे, तो डेफिनेटली जो है जो एप्लीकेशन बनेगी, जो इंटरफेस होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब जो डेवलपर है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको जस्ट अज्यूम कर रहा है कि यूज़र को भी पता होंगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। और ये एक कॉमन जो है वो मिस्टेक है, ये कॉमन ट्रैप है जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं और जब उसके अंदर यूज़र की फीडबैक जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होती, यूज़र को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो वो सिस्टम अक्सर जो है फ्लॉप हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं होते यूज़र्स को। और उसकी की रीज़न यही होती है कि यूज़र की पार्टिसिपेशन जो है उसमें ना होने के बराबर होती है। यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तो वो अपनी सिस्टम परसेप्शन बताता है और डिस्क्राइब करता है उसको कि वो किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्शन को देखता है, और फिर बेस्ड ऑन दैट यूज़र इनपुट हम सिस्टम को जब डिज़ाइन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और लेकिन जो वो डिस्क्राइब करने का उसका स्टाइल है वो वेरी कर सकता है, डिफरेंट यूज़र्स का जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज होगा, और उसकी बेस के ऊपर जब वो इनपुट देंगे तो डेफिनेटली उसकी एक्यूरेसी जो है वो दैट मे वेरी यूज़र टू यूज़र। जो एक्सपर्ट यूज़र होगा, जिसको पहले से एक्सपीरियंस होगा डोमेन का, या जिसने पहले उस तरह का सिस्टम यूज़ किया होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करेगा एज कम्पेयर टू अ यूज़र हु इज़ क्वाइट न्यू इन दैट डोमेन और टू दैट सिस्टम। इसी तरह से जब हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बेसिकली लुक एंड फील की बात करता है। अगेन
इसके अंदर हमने ये भी देखना होता है कि जो सिस्टम जैसे कि इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए होगी, आपको हेल्प चाहिए होगी। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ऑनलाइन जो है आपकी हेल्प हो या आपकी ऑफलाइन हेल्प हो या आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे स्क्रीन टिप्स होती हैं उस तरह की हेल्प हो, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर होंगी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में। और अगेन कि यूज़र मेंटल मॉडल जो है उसकी बेस के ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बनेगा, अगर वो दोनों एक जैसे होंगे, अगर आप यूज़र की इनपुट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और फिर जो एप्लीकेशन या सिस्टम बनेगा दैट वुड बी बेटर देन द सिस्टम दैट हैज़ नो यूज़र इनपुट। और बड़ी एक कॉमन कोड जो कि इसको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह कन्वे करती है या इसकी इम्पोर्टेंस को, दैट इज़ नो द यूज़र नो द टास्क। अगर आपने अच्छा एक डिज़ाइन करना है इंटरफेस, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले यूज़र्स को अंडरस्टैंड करें कि किस टाइप के यूज़र्स हैं और फिर उनके टास्क्स को अंडरस्टैंड करें कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। इन दो को जब आप समझेंगे तो फिर जो सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस की। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो डिज़ाइन प्रोसेस है या जो एनालिसिस प्रोसेस है फॉर द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है और इसके अंदर इंटरफेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग होती है, इंटरफेस डिज़ाइन होता है, इंटरफेस कंस्ट्रक्शन होती है और इंटरफेस वैलिडेशन होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बुक है प्रेसमैन की, उसके चैप्टर नंबर 11 से ली गई है, पेज 319 से, कि हम इस प्रोसेस को जैसे आपने पहले प्रोसेस मॉडल देखा होगा दैट इज़ कॉल्ड स्पाइरल मॉडल, उसी के बेस के ऊपर जो है ये डायग्राम बनी है। इंटरफेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग होगी, जो भी यूज़र के हवाले से फीडबैक है, जो इनपुट है, जो टास्क हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, फिर उसकी बेस के ऊपर इंटरफेस डिज़ाइन होगा और इंटरफेस डिज़ाइन के हवाले से भी हम बात करेंगे डिटेल में। फिर जो है वो प्रोटोटाइप बनेगी दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस इन कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद इंटरफेस वैलिडेशन होगी, यूज़र की जो है फीडबैक होगी, प्रोटोटाइप आप उसको दिखाएंगे, वो एवेलुएट करेगा और फिर उसकी इनपुट के ऊपर दोबारा जो है उसको रिवाइज करेंगे, मे बी कि हम दोबारा यूज़र से इनपुट लें, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है अनटिल अनलेस के जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। अब हम डिटेल में बात करते हैं इंटरफेस एनालिसिस की। और इंटरफेस एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो यूज़र्स के ऊपर होता है। डिफरेंट टाइप के जो यूज़र्स हैं उनकी हम प्रोफाइल्स बनाते हैं, और यूज़र प्रोफाइल जो है ये एक जो है फर्जी स्केच होता है टिपिकल यूज़र्स का, कि भाई उसकी क्या एज है, उसकी क्या हैबिट्स हैं, वो किस तरह से जो है टास्क को परफॉर्म करता है। तो इस तरह के जो हमें स्केच हैं, जो यूज़र प्रोफाइल्स जो बनाते हैं, और डेफिनेटली हमें यूज़र से मिलना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, और फिर जो अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके बेस के ऊपर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। और डेफिनेटली उसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं दैट इज़ स्किल लेवल, डिफरेंट स्किल लेवल्स हो सकते हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, जिस डोमेन के अंदर जिस पर्पस के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो एक जनरल सिस्टम की जो है रिसेप्टिवनेस होगी उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। यूज़र्स को अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए आप ये जो रिसेप्टिवनेस है सिस्टम की उसको बढ़ा सकते हैं, और यूज़र्स की आप फीडबैक भी ले सकते हैं कि वो आने वाले सिस्टम को, नए सिस्टम जो आप डेवलप करने जा रहे हैं उसको कैसे देखते हैं। और फिर इसी तरह से क्या है कि आप हर यूज़र से, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटरव्यूज़ करते हैं या और किसी मेथड के थ्रू आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड टास्क एनालिसिस। और टास्क एनालिसिस जो है ये भी एक ब्रॉड जो है एरिया है, इसको आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे
कि आप जो टास्क डिफरेंट परफॉर्म होते हैं उन टास्क के अंदर आप देखते हैं कि क्या कुछ सब टास्क हैं और उसके अंदर क्या कुछ ऑप्शंस हैं, वो कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं, क्या उसके अल्टरनेट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं जब इंटरफेस एनालिसिस करते हैं, तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं ज़्यादा अच्छे इंटरफेस डिज़ाइनिंग में। और फिर आपको फिजिकल जो वर्क कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना होता है। जिस इन्वायरमेंट के लिए आप बनाने जा रहे हैं उसको भी आपने देखना है। जैसे कि फिजिकल जो लोकेशन है आपने उसको देखना है कि ये कहाँ पे होगा, किसी लैब के अंदर होगा, किसी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर होगा, किसी और जो है ना लोकेशन के ऊपर होगा। तो जो फिजिकल लोकेशन होगी जहाँ पे आपका सिस्टम डिस्प्ले होगा, जहाँ पे वो आप इंटरेक्ट करेगा यूज़र, वो क्या है। इसी तरह से यूज़र की पोजीशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। यूज़र जो है ही विल बी सिटिंग और स्टैंडिंग वाइल यूजिंग द सिस्टम। तो इसको आपने देखना होगा। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न है। और फिर इसी तरह से और इन्वायरमेंट के जो कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपने उसको भी कंसीडर करना है। हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में एक लैब के अंदर जो है सिस्टम को डिप्लॉय करना है, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, पुरस्कून इन्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लांट के ऊपर अपने सिस्टम को डिप्लॉय करना है, तो वहाँ पे डेफिनेटली नॉइजी इन्वायरमेंट होगी और वहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उसको भी आपने कंसीडर करना होगा। जैसे अगर सपोज के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर प्लांट के ऊपर टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो वो भी एक फैक्टर है जिसको आपने ज़रूर देखना होगा। तो ये सारी जब चीज़ों को आप देखते हैं तो फिर आप एनालिसिस मॉडल बनाते हैं, डेवलप करते हैं कि ये सारी चीज़ों को फिर आप उसके अंदर अकोमोडेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेस डिज़ाइन की। और इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर आप ये देखते हैं कि वो क्या उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस सिस्टम के लिए क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या एक्शंस हैं और फिर उनको कैसे जो है स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना है। कुछ की जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगा कि सिर्फ स्क्रीन के ऊपर उनके डिस्प्ले होगा, लेकिन कुछ और जो है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो डेटा स्टोरेज के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हों, या कुछ और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो वो इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और यूज़र को फिर आपने कंसीडर करते हुए कि यूज़र के जो भी टास्क हैं वो टास्क वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। और अगेन यूज़र की जो एफर्ट है उसको मिनिमाइज करना है। जो सिस्टम जब वो यूज़ करे दैट मस्ट बी इजी टू यूज़, और इसी को हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो गुड यूजिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से इंटरफेस कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंटरफेस कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, क्रिएशन ऑफ ए प्रोटोटाइप है। और प्रोटोटाइप जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर जो हमने डिफरेंट यूज़र प्रोफाइल्स बनाई होती हैं और उसके साथ यूजेज सिनेरियोज बनाए होते हैं। यूजेज सिनेरियोज के अंदर आप पॉसिबल सिनेरियोज लिखते हैं, जैसे यूज़ केसेस होते हैं। यूज़ केस के अंदर भी आप यूज़र की इंटरेक्शन बताते हैं सिस्टम के साथ, तो बिल्कुल उसी तरह से यूजेज सिनेरियो के अंदर भी आप डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और उसके अंदर सब सेक्शन और हेडिंग्स हो सकती हैं। और फिर उस यूजेज सिनेरियो को सामने रखते हुए आप प्रोटोटाइप आप कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की। और डिफरेंट आपके पास टूल किट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, प्रोटोटाइपिंग के अंदर। विजुअल लैंग्वेजेस जैसे हैं वो आपको हेल्पफुल है, उसमें बड़ी ईजिली जो है आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेस वैलिडेशन की, और इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि हमने कहा कि प्रोटोटाइप को वैलिडेट करते हैं जब हम डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यूजर की इंटरैक्शन को। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी यूज़र के डिफरेंट टास्क हैं उन सब की इम्प्लीमेंटेशन होगी। यूज़र ने जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं वो उस एफिशिएंटली उसको परफॉर्म कर सके। और फिर एक है कि सारे टास्क जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। दूसरा ये कि डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, टास्क के डिफरेंट सीक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं उसको भी कंसीडर करना होगा और वो सारी वेरिएशंस उनको भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। और अगेन जब
यूज़र की इंटरेक्शन हो डिफरेंट टास्क के लिए, तो वो इजी होनी चाहिए और वो इजी टू लर्न होना चाहिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो इनफ्रीक्वेंट यूज़र होता है, जो ऑन एंड ऑफ यूज़ करता है, तो उसके लिए रिकॉल करना जो है सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कि कैसे हमने इस पे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने, वो मुश्किल होता है और यूज़र की मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ता है। तो इसीलिए जो लर्नेबिलिटी वाला फैक्टर है, वो लर्नेबिलिटी का जो टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। यूज़र कम से कम टाइम के अंदर जो है वो सिस्टम को लर्न कर ले कि कैसे इसको यूज़ करना है। और अल्टीमेटली जो वैलिडेशन है उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूज़र की एक्सेप्टेंस। अगर यूज़र एक्सेप्ट करता है आपके आर्टिफैक्ट, आपके प्रोडक्ट को, तो आपका जो प्रोडक्ट है होपफुली वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और ज़्यादा उसको लोग यूज़ करेंगे। तो ये सारी जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं जब हम एनालिसिस और डिज़ाइन प्रोसेस की बात करते हैं। आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के। सबसे पहले हमने बात की कि आजकल डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर हमें यूज़र की समहाउ इन्वॉल्वमेंट होती है, यूज़र को इंटरेक्ट करना होता है सिस्टम के साथ। आप देखें गेम में भी, और अगर सपोज आप एयरप्लेन के कॉकपिट में हैं तो पायलट जो है वो ह्यूमन बीइंग ही है और उसने स्टिल डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना है। तो जब वो सिस्टम्स, उनकी इंटरेक्शन जो है वो सिंपलर होगी तो डेफिनेटली यूज़र जो है उसको ज़्यादा लाइक करेगा और यूज़र की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। तो हमने कहा कि कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, कोई भी क्वालिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम जो है, उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। दैट इज़ यूज़फुल, यूजेबल एंड यूज्ड। यूज़फुल में हमने कहा कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो सिस्टम को परफॉर्म करनी है, जो इंटेंडेड फंक्शन है, वो ज़रूर फुलफिल करना चाहिए एप्लीकेशन को या उस सिस्टम को। इसी तरह से यूजेबल की बात की कि वट एवर इज़ द टास्क यूज़र कैन परफॉर्म इट ईजली। तो जब वो ईजली परफॉर्म करेगा और जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो उसके अंदर होगी तो वो सिस्टम को यूज़ किया जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड यूज्ड। तो जब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम के अंदर होंगी तो सिस्टम के यूज़ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर इसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट गाइडलाइंस हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की, लेकिन उसके अंदर जो जिसको हमने डिस्कस किया दैट आर कॉल्ड 3 गोल्डन रूल्स, और इनके अंदर फर्स्ट वन वाज था प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि पहले जो है सिस्टम के ऊपर फोकस था, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस था, लेकिन अब जो ये फोकस है ये चेंज हो गया। हम सिस्टम सेंट्रिक की बजाय यूज़र सेंट्रिक जो है हो गए हैं, और यूज़र सेंट्रिक के अंदर भी हमने जो कंट्रोल है वो यूज़र को देना है कि सिस्टम ड्राइव नहीं करेगा यूज़र को, बल्कि यूज़र ड्राइव करेगा सिस्टम को। और इसके अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और फिर हमने रिड्यूस द यूज़र मेमोरी लोड की बात की, और इसमें हमने कहा कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लिमिटेड है, यूज़र को फैसिलिटेट करना चाहिए हमें जब हम डिफरेंट वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। सेकंड गोल्डन रूल इज़ रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड, और मेमोरी लोड को हमने कहा कि इसकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है और उस रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी की हमें सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए और हमें कम से कम जो है रिकॉल की तरफ जाना चाहिए। यूज़र को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, यूज़र को ये नहीं हो कि उसने याद रखना है कि लास्ट इनपुट क्या थी या लास्ट रिज़ल्ट क्या था, और यूज़र इस वक्त किस जो है स्टेज के ऊपर है, जो सिस्टम का स्टेटस है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम को बतानी चाहिए। और फिर इसी तरह से हमने बात की कि जो थर्ड जो रूल था मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट, और इसमें हमने कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस किया कि जब एप्लीकेशंस डिफरेंट आप डिज़ाइन करते हैं, बल्कि पहले तो हम सिंगल एप्लीकेशन की बात करते हैं कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपकी कन्वेंशंस हैं वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो डिफरेंट स्क्रीन्स हैं आपकी यूज़र के लिए जिसको आपने डिस्प्ले करना है, वो सारी जो है
उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात की कि जब एक फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जांपल ली कि उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अब उन डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। कि जैसे अगर क्लोज का बटन है, और क्लोज का बटन जो है हमें पता है कि वो टॉप राइट के ऊपर होता है, तो हर एप्लीकेशन के अंदर उसी तरह से होना चाहिए। और इसके अंदर हमने एक और बात भी की कि डिफरेंट जो कन्वेंशंस होती हैं वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं कि कंट्रोल सी जो है दैट इज़ टू कॉपी समथिंग। तो अगर आप कंट्रोल सी जो है और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर भी कॉपी ही के लिए यूज़ होना चाहिए, या कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के लिए है, तो इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में सेम होना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो नहीं कर सकते और हम इस कन्वेंशन से हट के कोई और शॉर्टकट या कोई और मैकेनिज्म लेके आते हैं इस इंटरेक्शन या इस फीचर के लिए, तो फिर हमें उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना होगा। इसके बाद हमने बात की एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस की, और उसके अंदर हमने इंटरफेस एनालिसिस की बात की और इंटरफेस मॉडलिंग की बात की, और हमने यूज़र के ऊपर फोकस किया कि यूज़र जो है उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एक ही टाइप का। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, नोविस यूजर्स एंड एक्सपर्ट यूजर्स। और नोविस यूजर्स जो है वो उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनका जो लेवल होता है, लेवल ऑफ नॉलेज फॉर सिंटैक्टिक जो है नॉलेज, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। लेकिन जो सिमेंटिक नॉलेज होता है सिस्टम का, वो भी लिमिटेड सा होता है। तो जब आप उनके लिए इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तो वो इंटरफेस जो है वो ज़्यादा इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उस इंटरफेस के जो कि आपने एक्सपर्ट यूज़र के लिए बनाना है। और एक्सपर्ट यूज़र जो है उसका हमने कहा कि दो टाइप्स हैं फर्दर, एक जो है इनफ्रीक्वेंट यूज़र है और एक फ्रीक्वेंट यूज़र है। जो इनफ्रीक्वेंट यूज़र है उसका भी सिमेंटिक नॉलेज अच्छा है, लेकिन उसका जो सिंटैक्टिक नॉलेज है वो लिमिटेड है। तो उसको हमने सपोर्ट करना है कि जो रिकॉल है वो कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम्स होंगे। तो अब जब हम डिफरेंट यूजर्स की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन डिफरेंट यूजर्स प्रोफाइल हमें डिफरेंट इंटरफेसेस बनाने होंगे, और फिर हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करना होगा कि यूज़र अपनी प्रेफरेंसेस को सेट कर सकें, और ना सिर्फ सेट कर सकें बल्कि अगर वो रीसेट करना चाहते हैं, वो दे वांट टू गो बैक टू डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस, तो वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के ऊपर भी जा सकें। और फिर हमने इंटरफेस डिज़ाइन की बात की, और हमने कहा कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो यूज़र एनालिसिस से बनती है, इंटरफेस एनालिसिस से बनती है, टास्क एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं उससे बनती है, तो हमें उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने देखना होता है। वो ऑब्जेक्ट्स जिसका कंसर्न जो है वो स्क्रीन प्रेजेंटेशन के साथ है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनका डेटा स्टोरेज के साथ कंसर्न है, या और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे हम यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं। फिर हमने इंटरफेस कंस्ट्रक्शन की बात की, और इसमें हमने कहा कि हम प्रोटोटाइप जो है वो बनाते हैं, और डेफिनेटली प्रोटोटाइप के साथ फिर उसकी वैलिडेशन होगी, और वैलिडेशन के लिए यूज़र्स को इन्वॉल्व करते हैं, और यूज़र हमें बताते हैं कि क्या वो उनके जो डिज़ायर्ड जो टास्क हैं वो प्रॉपरली इसे फुलफिल हो रहे हैं, परफॉर्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ आइटरेटिव प्रोसेस, और विद मल्टीपल आइटरेशंस जो है हम एक अच्छे डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं, जो कि अच्छे इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।